Hello everyone, this is Manveet from Worldwide Visa Experts. Today we'll discuss about Duolingo English test, that what this test is and which universities and colleges are accepting this test, and what is the difference between Duolingo English test and other proficiency test, and how does scoring work and what is the process, and the most importantly, I'll explain all Duolingo English test tasks. Let's start with what is Duolingo English test. Duolingo English test is an English proficiency test. This is convenient, fast and affordable. Convenient means like you can appear in this test by sitting at home, and at any time you can take this test. Fast, it's a 1 hour test. Affordable because it costs $49 only. Which universities and colleges are accepting Duolingo English test? So thousands plus universities are accepting this test, and through the mentioned link you can check which university and colleges are accepting. What is the difference between Duolingo English test and other proficiency tests like TOEFL and IELTS? So Duolingo English test is cost only $49, and it's online course, and the length is 1 hour. 2 days you can get your result, and unlimited sharing. It means like you can share your results with many universities and colleges. And how do scores compare? So if we talk about IELTS, band of 5 to 7 is equal to 90 to 115, and IELTS band 7 to 9 is equal to 120 to 160. Test process: 5 minutes you will get for an introduction to check the rules and requirements, and 45 minutes for completing the all tasks. And this is adaptive test. The meaning is like in the starting you will get easy questions, and when you go to the different tasks it will get tougher for you, and it's a good sign that you are going good. And last 10 minutes will be your video interview. This section will not be assessed because this will go directly to your university and colleges to whom you are going to share your results. Requirement for the test: security, ID verification you need here, your passport, and browser lockdown means that you cannot open any other application on your laptop or computer. And at the last, video sample, that video that will go to your university and college. Understand the test rules, like no headphones, earphone you can use while giving test, and you cannot look off from the screen. No other application you can use, and nobody should enter in your room, and no devices using. Requirement is you need to have your passport, ID, and room should be quiet, and it will take 60 minutes to complete all tasks. You should have reliable internet connection, a computer, supported browser on your computer, and front facing camera should be there, microphone and speaker. Now we are coming to main part, that is all tasks of Duolingo English test. There are certain key points which you need to take care of, like firstly, like there is no any sequence of the task. Any task can appear multiple times and in any sequence. And secondly, that each task is a time bound, so you have to keep eye on timer as well. And you cannot make notes. You are not allowed to keep notebook or any pen. First task is select the real English words in the list. So list यहाँ पे mention है, and इसमें आपको correct words मिलेंगे, and be careful about the spelling mistakes. यहाँ पे real words हैं पर उनके spelling mistakes भी होते हैं, तो आपको with the spelling एक real
इंग्लिश वर्ड पर ही क्लिक करना है. एंड व्हाट इज़ असेस्ड हियर? योर वोकेबलरी एंड स्पेलिंग्स. एंड हाउ वी विल प्रिपेयर यू? We will discuss in the class number of vocabulary so that you will be answer to correct words. Type the statement that you hear. यहाँ पे आपको कुछ sentences सुनेंगे, उन sentences को सुन करके you are to write in the box. And यहाँ पे assess क्या होगा? आपका listening power and आपका writing skills. So हम आपको कैसे प्रिपेयर करेंगे? यहाँ पे हम आपके लिसनिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे. लिसनिंग पावर स्ट्रॉन्ग होगी तो आप अंडरस्टैंड करके आप लिखने में भी एबल होंगे. रिकॉर्ड योरसेल्फ सेइंग द स्टेटमेंट बिलो. यहाँ पे स्टेटमेंट रिटन है स्क्रीन पर. इस स्टेटमेंट को आपने केयरफुली 20 सेकेंड्स में रीड करना है लाउडली. इसमें असेस क्या होगा? आपका रीडिंग स्किल्स एंड आपका स्पीकिंग स्किल्स, आपका प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, इंटोनेशन की मार्किंग होगी यहाँ पे. एंड यहाँ पे हम प्रिपेयर करवाएंगे आपको स्पीकिंग के स्किल्स, आपको बताएंगे किस तरीके से आपने स्पीक करना है, रीड करना है ताकि नेचुरल लगे. सेलेक्ट द रियल इंग्लिश वर्ड्स इन द लिस्ट. यहाँ पर आपको फिर से अगेन वर्ड्स को सेलेक्ट करना है, बट यहाँ पे आपको लिसन करके सेलेक्ट करना है. आप लिसन करेंगे वर्ड को एंड अगर आपको वर्ड सही लगता है तो मार्क टिक करेंगे. इसमें आपकी लिसनिंग एंड वोकेबलरी असेस होंगी. एंड अगेन यहाँ पे वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि आप फेमिलियर हो वर्ड्स के साथ. तो जो वर्ड्स आपने सुना नहीं है वो आप टिक नहीं करेंगे यहाँ पे. स्पीक द इंग्लिश वर्ड फॉर ईच इमेज. इस सेक्शन में आपको इमेजेस अपीयर होंगी स्क्रीन पे एंड आपको स्क्रीन पे इमेज को देख के 3 सेकेंड्स के अंदर आपको आंसर देना है. इसमें ज़्यादा टाइम नहीं है. यू जस्ट नीड टू स्पीक अ सिंगल वर्ड. जैसे कि यहाँ पे इमेज है ऑलरेडी तो यू कैन से अ काउ या फिर दिस इज़ अ काउ. कैट है तो दिस इज़ अ कैट और अ कैट यू कैन स्पीक. सो क्विक होना है आपको इस सेक्शन में बिकॉज यू आर नॉट हैविंग मच टाइम. इसमें आपका स्पीकिंग स्किल्स एंड रिट्राइवल स्किल्स यहाँ पे चेक होंगी. हम यहाँ पे आपको प्रिपेयर करवाएंगे कि किस तरीके से आपने क्विक आपने आंसर देना है. वी विल प्रैक्टिस हियर फॉर दिस सेक्शन. राइट 1 or more sentences that describe the image. यहाँ पे इमेज है और इमेज को आपने डिस्क्राइब करना है 1 या 2 सेंटेंसेस में, क्योंकि यहाँ पे यू विल बी हैविंग ओनली 1 मिनट. यहाँ पे आपका राइटिंग स्किल्स चेक होगा एंड हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे कि एक स्ट्रक्चर देंगे कि किस स्ट्रक्चर में आपने पिक्चर देख के उसको कैसे यहाँ पे सही वर्ड्स में लिखना है, डिस्क्राइब करना है. टाइप द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द टेस्ट. सो यहाँ पे आपको 3 मिनट्स मिलेंगे टू कंप्लीट दिस टास्क. एंड यहाँ पे कुछ लेटर्स मिसिंग हैं. जैसे आपने देखा है कि यहाँ पे एयर ऑल्सो कंटेन्स ऑक्सीजन. एयर के बाद आई है, आई के बाद एक लेटर मिसिंग है. सो यू नीड टू चेक एंड करेक्टली फिल दिस. सो यहाँ पे आपकी रीडिंग एंड राइटिंग दोनों ही चेक हो रही हैं एंड हम आपको प्रिपेयर करवाते हैं यहाँ पे रीडिंग पैराग्राफ से कि किस तरीके से आपने फिलिप्स को फिल करना है. रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन इन एटलीस्ट 50 वर्ड्स. यहाँ पे 5 मिनट्स मिलेंगे आपको टास्क को कंप्लीट करने के लिए और मिनिमम 50 वर्ड्स आपने लिखने हैं. कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो सकता है कुछ वर्ड्स वो भी. सो इसमें राइटिंग स्किल्स को चेक करने के लिए आपकी क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. सबसे पहली टास्क अचीवमेंट, कि टास्क को आपने कैसे अचीव किया है, आपने कम वर्ड्स लिखे हैं या प्रॉपर वर्ड्स लिखे हैं. टास्क रिस्पॉन्स, कि क्वेश्चन जो पूछा है वो रेलिवेंट आंसर है या नहीं. कोहेरेंस एंड कोहेजन. लेक्सिकल रिसोर्सेज, कि आपकी वोकेबलरी रेंज आपकी यहाँ पे कैसी है, किस तरीके से आपने सेंटेंसेस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन आपकी क्या है, ग्रामेटिकल रेंज एंड उसकी एक्यूरेसी. सो ये सारी स्किल्स हैं जो राइटिंग पार्ट में आपकी चेक होती हैं. वी वर्क ऑन दिस टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स. प्रिपेयर टू स्पीक फॉर एटलीस्ट 30 सेकेंड्स. सो यहाँ पे आपको आल्स के जैसे ही एक क्यू कार्ड टाइप क्वेश्चन है, बट यहाँ पे आपको ओनली 30 सेकेंड्स के लिए बोलना है. ये भी आपकी
स्पीकिंग स्किल्स आपकी चेक होंगी। स्पीकिंग स्किल्स में क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जो यहाँ पे आपको मार्किंग बेटर के लिए हेल्प करेंगी। फर्स्ट थिंग इज़ फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस, लेक्सिकल रिसोर्सेज, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी एंड प्रोनाउंसिएशन। तो हम आपकी इन चीज़ों पे प्रैक्टिस करवाते हैं, आपकी इम्प्रूव करते हैं। फ्लुएंसी, आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को सही करते हैं, एंड वोकेबलरी एंड जो है आपका सेंटेंसेस फॉर्मेशन। लास्ट पार्ट इज़ इंटरव्यू एंड राइटिंग सैम्पल। इसमें आपको इंटरव्यू पार्ट में 2 क्वेश्चंस आएंगे, 2 टॉपिक होंगे और उसमें से एक टॉपिक आपको सेलेक्ट करना है। 1 to 3 मिनट्स के लिए आपने लाउड स्पीक करना है इसमें। एंड द अदर पार्ट इज़ राइटिंग सैम्पल। उसमें अगेन आपके 2 टास्क होंगे, 2 टॉपिक होंगे, उसमें से एक को चूज़ करके देन यू आर टू राइट इन अ 5 मिनट्स। सो ये जो पार्ट है ये आपका मार्किंग को अफेक्ट नहीं करता है, बिकॉज इट्स नॉट ग्रेडेड फॉर योर टेस्ट। एंड ये जो पार्ट है ये आपका यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस को जाता है, जिनसे आप ये रिजल्ट शेयर करते हो। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द टास्क, द स्क्रीन विल अपीयर इन योर लैपटॉप। इस स्क्रीन में ईमेल आईडी पर क्लिक करके यू कैन शेयर योर रिजल्ट्स विद द यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। And I hope this video would help you to understand all the tasks, and so everyone, good luck for your practices, and stay tuned. Thank you for watching.